Kultali, BJP has demanded for death penalty of the accused in a CBI probe in the case. BJP has also said the post-mortem should be performed again in a government hospital. Brian Thomas is joining us for more details on this story. Brian, in this case, of course, being reported from Kultali, BJP jumping in. What are BJP's main demands? Well, Uday, definitely, a body of a 10-year-old girl allegedly was raped and murdered and was discovered in West Bengal, South Chobbish Parganas, which led to a lot of widespread protests and unrest also. Now, there was the locals also who were, torching, who were on protest. And now, yes, talking about the BJP also, a pressure from BJP and also CPIM also are coming where they're demanding that the case should be transferred to CBI, and even the girl's body was also transferred to a Kolkata morgue also for autopsy. Even expressing a lot of outrage also, Union Minister and West Bengal BJP President Sukanta Majumdar has also said that the young girl was abducted and raped and murdered while returning from tuition. And he also goes on to say that the women of West Bengal are not safe even during the Devi Pok show. And also he criticized the Chief Minister Mamata Banerjee for failing to protect women as well. And BJP stance, we talk about Shahzad Poonawalla also, he also condemned Mamata Banerjee and the TMC-led government, saying that there is no proper law and order that is being maintained. A BJP protest also was organized in Salt Lake and Central Kolkata, denouncing the alleged rape and murder of the girl with slogans also, which was saying that Dhitkare, Dhitkare, and they condemned the Kolkata police and also, the law and order, and Mamata Banerjee, that the law and order is just completely out of proportion and is not working properly as well. Uday. All right, Brian, stay with us. In fact, we're getting more breaking news now coming in. The hearing in the High Court is all set to continue after the father of the minor girl has appealed to the Kolkata High Court for autopsy at the Central Monitor Hospital. So these are the big updates coming in. Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, the hearing in the High Court is all set to continue in this particular case as well? एकदम देखिए, ये कुलतली में जो घटना घटा था उसको लेकर अभी हाई कोर्ट में जो मामला है उसका हियरिंग चल रहा है। जैसा कि हाई कोर्ट का सूत्र के हवाले से खबर है कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर किया गया था, जिस एप्लीकेशन में बताया जा रहा था कि कुलतली में जो नाबालिका के साथ दर्शन करके खून करने का घटना में उस जगह में जो विक्टिम का फादर है उनके तरफ से एक अपील किया गया था कि ये जो विक्टिम का डेड बॉडी है इसका जो ऑटोप्सी ये सेंट्रल मॉनिटर्ड कोई हॉस्पिटल में करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ही इसका ऑटोप्सी होना चाहिए। ये दो डिमांड रखा गया था। ये दो डिमांड रखते हुए दो डिमांड को कल लोअर कोर्ट में वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से अपील किया गया था, मगर लोअर कोर्ट की तरफ से ये पूरा मामले को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद ही कोलकाता हाई कोर्ट में कल रात को ही एप्लीकेशन दायर किए थे। कुलतली पुलिस स्टेशन जयनगर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर में आता है कुलतली पुलिस स्टेशन, उनकी तरफ से ये एप्लीकेशन दायर किया गया था। उसके वजह से ही आज कोलकाता हाई कोर्ट का जो जस्टिस उनके तरफ से ये जजमेंट दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे से ये जो हियरिंग चालू हुआ है, जिसमें फैमिली के तरफ से जो अपील रखा गया है कि पूरा ये जो इन्वेस्टिगेशन में कुलतली पुलिस स्टेशन का और जयनगर पुलिस का जो लापरवाही हुआ था उस लापरवाही को देखते हुए वो लोग चाहते हैं कि ये जो ऑटोप्सी होगा या तो पोस्टमार्टम किया जाएगा वो कोई सेंट्रल मॉनिटर हॉस्पिटल में किया जाए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने किया जाए। ये एप्लीकेशन में कोलकाता हाई कोर्ट क्या राय देते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं, इसके ऊपर भी नजर रहेगा। क्योंकि एक तरफ जब ये पूरा घटना घटा है, जिस घटना में एकदम डायरेक्टली पुलिस के ऊपर लापरवाही का एलिगेशन फैमिली की तरफ से लगाया गया है। फैमिली की तरफ से जो एलिगेशन है कि ये पूरा घटना में घटने से पहले ही पुलिस को बोला गया था कि जो नाबालिका है वो मिसिंग है, तो मिसिंग डायरी पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया था। ये कंप्लेन भी परिवार की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी को लेकर अभी सवाल आ रहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डिमांड बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से रखा जा रहा है, वैसे ही परिवार की तरफ से भी सेंट्रल मॉनिटर्ड कोई हॉस्पिटल में ऑटोप्सी हो ये दावी भी रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ये पोस्टमार्टम किया जाए, ये डिमांड भी रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामले को लेकर अभी कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से क्या राय दिया जाएगा इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। मगर कुल मिलाकर आप देख ही सकते हैं कि एकदम कुलतली पुलिस स्टेशन के सामने बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं। एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। এই যে এই ধরনের ঘটনা ঘটলো, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি করবেন? কি বলবেন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে?
পুলিশের ভূমিকা বলতে গেলে কি বলবো, পুলিশ অনেকটা সক্রিয় ছিল, বাট স্টিল অনেক সময় হয় না যে পুলিশ গিয়েও যেতে পারে না, এমন এক পরিস্থিতি হয়। তো সেক্ষেত্রে ওইরকম একটা কেস ঘটে গেছে এই মুহূর্তে। एकदम उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है पुलिस सही तरीके से काम कर रहा था, मगर किसी भी जगह में पुलिस को जाने में भी दिक्कत होता है। वैसा ही ये घटना है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। बहुत सारे लोग भी इधर शामिल हुए हैं और आप देख ही सकते हैं कुछ समय पहले ही इधर बीजेपी का जो कार्यकर्ता की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया था, सुकंदर मुजुमदार खुद इधर मौजूद थे, उनके तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया था। और उसी को देखते हुए कुलतली पुलिस स्टेशन के सामने जो पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है और पुलिस का बैरिकेड भी इधर मौजूद है। मगर इसी सिचुएशन में अभी कोलकाता हाई कोर्ट में भी ये मामले को लेकर अभी हियरिंग जारी है और इस मामले पर सबसे महत्वपूर्ण जो है ऑटोप्सी, क्योंकि कल भी दिखा गया था जब डेड बॉडी कुलतली से कोलकाता ले जाया गया था, कोलकाता ले जाने के बाद ही डेड बॉडी को बीजेपी कार्यकर्ता अग्निमित्र पॉल की तरफ से रोक दिया गया था और उसके साथ साथ ही उनके तरफ से डिमांड किया गया था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पूरा मामला सौंप दिया जाए, क्योंकि ये पूरा घटना में जो पुलिस है, पुलिस के ऊपर ही परिवार की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिचुएशन को देखते हुए आज कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से क्या राय दिया जाएगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.